we are going to start a chapter named respiration in organisms. ये जो चैप्टर है ये हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत हमने जाना है रिगार्डिंग रेस्पिरेशन, थोड़ा बहुत। मेरी आवाज आप लोगों को तक सुनाई दे रहा है ना? हाथ उठाओ इफ द वॉइस इज क्लियर, अगर मेरा वॉइस क्लियर हो। एसटी बॉयज हॉस्टल, LDST बॉयज, क्या हुआ? हाँ, व्हाट आर यू डूइंग? फर्स्ट बेंच, व्हाट हैपेंड टू यू? तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। हमने पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो रेस्पिरेशन है ये क्या है, ये हमने पढ़ा था। इफ you go through the previous classes which we have discussed, if you go through the previous classes which we have discussed, then you will understand that what is respiration. आप लोगों के कॉपी में अगर लिखा हो रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट हो सकते हैं, उन लोगों के उन चीज़ों में डिफरेंस क्या है, रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में डिफरेंस क्या है, अगर ये आप लोगों को नहीं मालूम हुआ तो आप चैप्टर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग का जो पार्ट है इनहेलेशन एक्सहेलेशन वो क्या है, उसके बारे में हमने डिटेल स्टाडी किया था। আমরা গত আগের ক্লাসে আমরা রেসপিরেশন সম্বন্ধে আলোচনা করেছি, সেখানে রেসপিরেশন এবং ব্রিদিং এর যে পার্থক্য সেটার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। রেসপিরেশন এবং ব্রিদিং যে একটার সঙ্গে একটা কানেক্টেড সেটার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। পাশাপাশি রেসপিরেশন এবং ব্রিদিং এর কি কি কাজ, কি কি ফাংশন সেই সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। In previous class we have discussed about respiration. What is respiration? What is the function of respiration? Also we have discussed about we have discussed about breathing, the types of breathing, the activities of breathing, और what is the activities doing during breathing। ठीक है, आज हम लोग डिटेल्स में रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स का जो पूरा चैप्टर है वो हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये आप लोगों का एनसीईआरटी का बुक है। क्या हुआ? ये आप लोगों का एनसीईआरटी का बुक है, इसमें से हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ब्रीदिंग। अच्छा देखो, पहले इधर एक क्वेश्चन है, देयर इज ए फर्स्ट क्वेश्चन इन आवर चैप्टर, व्हाई डू वी रेस्पियर। ये एक टर्म है, ये किसके साथ कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है रेस्पिरेशन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाई डू वी रेस्पायर। रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या है? ए सेल is the smallest structural and functional unit of an organism. Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. To perform these functions, the cells needs energy. Even when we eat, sleep or reading, we require energy. This energy we get from respiration. इधर बताया गया कि a cell क्या होता है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज द, आपको अगर क्वेश्चन मिले व्हाट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, योर आंसर विल बी सेल। आप लोगों को अगर बोला जाए व्हाट इज द, खाते में लिख लो प्लीज, ऑल ऑफ यू राइट डाउन, जल्दी जल्दी लिखो प्लीज, राइट डाउन। क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल, what is the smallest structural and functional unit of organism? Question लिखो, what is the smallest structural, yes, ভালো করে দেখে না তো, একটু ভালো বড় করে দেখো না। আচ্ছা আমি লিখিয়ে দেব, দাঁড়াও আমি লিখিয়ে দিচ্ছি, ওয়েট, এটা কোথায় গেল?
লেখো হোয়াট ইজ দ্য structural and functional unit of organism. आंसर লেখো সেল, বাংলাতে বলা হয় কোষ। ঠিক আছে, হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল and functional unit of organism? আনসার হলো সেল। সবাই এটাকে লিখো, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ। হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ অ্যান অর্গানিজম? সেল ইজ দ্য স্ট্রাকচারাল অ্যান্ড ফাংশনাল ইউনিট অফ অর্গানিজম। আনসার হবে সেল। এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সাম। তাড়াতাড়ি লিখো। लिखे छो? हो गया आपका? लिखना हो गया क्या? हैव यू कंप्लीटेड? अरे लिखे छो कि है कि ना बोलो, ताते लिखो। What is the structural and functional unit of organism? The structural and functional unit of organism is cell. ওকে, চলো ঠিক আছে, এখন আমরা স্লাইডে ফিরে যাই। এটা বড় হয় না কেন? এটা থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তো আমরা পড়েছি হোয়াই ডু উই রেসপিয়ার, আমরা কেন রেসপিরেশন প্রসেসটা করি? টু গেট এনার্জি। এখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে, হিয়ার ইট ইজ রিটেন ক্লিয়ারলি that we need energy. Okay, so why do we respire? We respire because we have to get energy. हमको एनर्जी चाहिए, हमको एनर्जी चाहिए, लेकिन किस लिए एनर्जी चाहिए, किसके लिए एनर्जी चाहिए? We will need energy for our cell. The smallest structural and functional unit of organism is cell. ये है, तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो इसके लिए अगर एनर्जी हमको चाहिए तो ये एनर्जी आपको कौन देगा? आपको देगा रेस्पिरेशन। अभी देखो, रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। रेस्पिरेशन इज ऑफ टू टाइप्स। एक का नाम है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरे का नाम है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। क्या क्या होता है? दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है। क्या क्या होता है? टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आर देयर। लिख लो जल्दी जल्दी। अच्छा, দুই ধরনের রেসপিরেশন হয়। কি কি হয়? দুই ধরনের রেসপিরেশন। রেসপিরেশন কয় রকমের হয়? রেসপিরেশন কয় রকমের হয়? রেসপিরেশন কয় রকমের হয়? টু টাইপস। খাতায় লিখো সবাই, অল অফ ইউ প্লিজ রাইট ডাউন, অল অফ ইউ প্লিজ রাইট ডাউন। রেসপিরেশন কয় রকমের হয়? দুই রকমের হয়। একটা হলো অ্যারোবিক রেসপিরেশন, আর একটা হলো অ্যানএরোবিক।
দুই রকমের রেসপিরেশন হয়, একটা হলো অ্যারোবিক আর একটা হলো অ্যানএরোবিক, ঠিক আছে? কয় রকমের রেসপিরেশন হয়? রেসপিরেশন দুই রকমের হয়। কয় রকমের হয়? আঙ্গুল দিয়ে দেখাও, কয় রকমের হয়? কয় রকমের হয় রেসপিরেশন? দুই রকমের হয়, সবাই দেখাও। প্লিজ শো ইউর হ্যান্ডস টু, yes, please show your hands to. Respiration is of two types, okay? One is aerobic respiration and another is anaerobic respiration. इधर से क्वेश्चन आएगा, how many types of respiration are there? Two types of respiration are there, ठीक है? तो one is aerobic and another one is anaerobic. বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ কোনো দেখতে পাচ্ছে না, না না দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जिसमें वी यूज ऑक्सीजन, जिस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होगा, ऑक्सीजन का व्यवहार होगा, उसको बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन वेयर वी कैन यूज ऑक्सीजन is known as aerobic respiration, and that type of respiration where we don't use oxygen, this is known as anaerobic respiration। समझ में आया? दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, अच्छी तरीके से समझ लो, अच्छी तरीके से समझ लो। अच्छा, दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, क्या क्या? वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, ठीक है? चलो फिर से हम स्लाइड में जाते हैं। ये इधर देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन यूज ऑफ ऑक्सीजन and anaerobic respiration we don't use oxygen, absence of oxygen, we don't use oxygen in case of anaerobic respiration, ठीक है? अभी चलो दूसरे स्लाइड में जाते हैं। दत्त बाबू फोन था। तो हमें जाना कि we use two types of respiration, one is aerobic respiration and another one is anaerobic respiration। अच्छा रुको, ये स्लाइड थोड़ा बेकी कैसे बोले। अच्छा, इधर एक चार्ट है, ये चार्ट थोड़ा आप लोगों के लिए समझ के लिए है। देखो इधर एक चीज है, आप अगर देखोगे कि हमने एक टर्म हमको पढ़ना चाहिए, वो है ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रीदिंग रेट? ब्रीदिंग मीन्स, ब्रीदिंग रेट में हम लोगों ने पढ़ा था इन आवर प्रीवियस क्लास, वी हैव लर्न दैट ब्रीदिंग आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज इनहेलेशन एंड अनदर वन इज एक्सहेलेशन। क्या क्या होता है ब्रीदिंग? ब्रीदिंग में टू टाइप्स होता है, वन इज इनहेलेशन and another one is exhalation। one is inhalation, जब हम सांस अंदर ले जाते हैं तब उसको बोला जाता है inhalation, लेकिन जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसको बोला जाता है exhalation। तो यही ब्रीदिंग का एक रेंज है, एक रेट है। तो आप अगर सपोज आपका एक फ्रेंड है जिसका नाम है संजय, मैंने नाम लिख दिया संजय, तो हम लोग संजय को ऑब्जर्व करेंगे। कैसे ऑब्जर्व करेंगे? उसका पहले हम नॉर्मल ब्रीदिंग रेट लेंगे। व्हाट इज द ब्रीदिंग रेट? ब्रीदिंग रेट इज इक्वल टू पल्स रेट। सब लोग एक काम करो, अपने अपने हाथ, बाया जो हाथ है, हाथ को ऐसे पकड़ो, ऐसे इस नसों पर ऐसे पकड़ो, देखना आपको कुछ फील आएगा। यू कैन फील समथिंग, समथिंग इज पल्पिंग, कुछ ऐसे वाइब्रेट हो रहा है, पकड़ के देखो,
सब लोग पकड़ो, ऐसे पकड़ो, इधर इधर ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ के देखो, खुद के हाथों में ही पकड़ो, पकड़ के देखना उधर एक इम्पल्स है, उधर एक समथिंग इज वाइब्रेटिंग, कुछ ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, उसी से हम लोग उसको बोला जाता है पल्स रेट या ब्रीदिंग रेट। उसको बोला जाता है क्या? पल्स रेट और ब्रीदिंग रेट एक ही है। तो उससे हम काउंट करते हैं कि हमारा ब्रीदिंग रेट और पल्स रेट कितना है। तो हमने एक्सपेरिमेंट हमको 1 1 2 3 4 4 आदमी पे हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कैसे? पहले हम लोगों ने संजय जो है हमारा फ्रेंड है संजय, सपोज संजय का एक क्या किया हमने, पल्स रेट हमने चेक किया, तो उधर आया कितना आया, सपोज 70 बीट पर मिनट, 70 बीट पर मिनट आया उसका नॉर्मल रेट। तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, नॉर्मल वॉक किया, नॉर्मल पैदल चल के गया, 10 मिनट पैदल चल के गया। 10 मिनट जब उसने पैदल चल के गया, उसके बाद हम लोगों ने उसका फिर से पल्स रेट चेक किया, तब वो हुआ 82 और 85 ऐसा ऐसा हुआ पर मिनट, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आफ्टर रनिंग फास्ट, जब उसने तेजी से दौड़ के भागा, 10 मिनट भागने का बाद जब हमने उसका पल्स रेट या ब्रीदिंग रेट चेक किया, ऐसा होता है ना, तब वो आया 120 और 130, ठीक है। फिर उसने क्या किया, रेस्ट कर लिया, he has taken rest. When he has taken rest, his breathing rate comes down to 75, ठीक है। समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट? चेंज ऑफ ब्रीदिंग रेट अंडर डिफरेंट कंडीशंस। हम लोगों के डेली रूटीन में हम लोग अगर ब्रीदिंग रेट हम लोग चेक करें, इफ वी चेक आवर ब्रीदिंग रेट एट कंटिन्यूअसली एट simultaneous events that we perform in our daily life, then we can see that our breathing rate will change according to our activities. First of all, when he was in normal position, when he was normal, then his breathing rate was 70 beat per minute. After walking a small distance for 10 minutes, his breathing rate goes higher from 70 to 82 in a increased direction. Okay, then when he ran for again 100-meter fast, then his pulse rate increases from 82 to 120 or 30. But when he is at rest position, जब वो रेस्ट कर रहा था, तब क्या हुआ, उसका नॉन ब्रीदिंग रेट और उसका पल्स रेट decreases down from 130 to 75. It again come to normal position. तो उसके द्वारा हम जान सकते हैं कि नॉर्मल रेट और ब्रीदिंग रेट क्या होता है, एक इंसान के जो कंडीशंस है उस कंडीशंस के अनुजाई वो क्या करता है, वो चेंज होता है। इट मीन्स इफ ए पर्सन इज एट डिफरेंट कंडीशंस, then the breathing rate will automatically change from one to another. If the person is at normal position, there will be one sort of breathing rate. अगर वो चल के थोड़ा 10 मिनट इधर आया तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा। द ब्रीदिंग रेट जनरली इंक्रीजेस और द पल्स रेट जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम 70 to 82. Again the breathing rate will, when he will run first, then the breathing rate will change from 82 to 120. When he is at rest position, then the breathing rate will generally come to the normal position. जो लोग हिंदी और इंग्लिश में नहीं समझते उसको बोलता हूँ, ব্রিদিং রেট মানে হৃদস্পন্দনের যে ধ্বনি। আমাদের এখানে একটি পালস রেট আছে যেটা আমরা সবাই এখানে ধরলে আমরা অনুভব করতে পারবো। তো সেটা যদি আমরা কাউন্ট করি পার মিনিট কাউন্ট হয়, 1 মিনিটে কাউন্ট হয়। তো আমরা যদি এটা কাউন্ট করি আমরা দেখতে পারবো, সাপোজ আমাদের এক বন্ধুর নাম সঞ্জয়, সঞ্জয়ের উপর আমি এক্সপেরিমেন্ট করলাম। সঞ্জয়ের উপর আমি কি এক্সপেরিমেন্ট করলাম, যে তার নর্মাল ব্রিদিং রেট পালস রেট কত, সে যে শ্বাস প্রশ্বাস নেয় নর্মাল তার একটা অনুমান আছে, ভ্যালু আছে, সেই ভ্যালুটা কত
70 বিট 70 বিট পার মিনিট, এক মিনিটে 70 টাইমস বিট হয়। তো এটা তার নর্মাল পজিশন। যখন সে 10 মিনিট হেঁটে গেল, 10 মিনিট হাঁটার পর তার বিটটা কত হলো 82 টু 85, 82 থেকে 85 তার বিট হয়ে গেল। মানে কি বিটটা 70 ছিল, এটা বেড়ে চলে গেল 82 আর 85। তারপরে কি হলো, সে দৌড়াতে আরম্ভ করলো। সে 10 মিনিট খুব দৌড়ালো, 10 মিনিট দৌড়ানোর পর সে কি হলো, তার ব্রিদিং রেট চলে আসলো 120। ছিল 82, বেড়ে চলে গেল 120। কেন? আমাদের শরীরের মধ্যে ব্লাড সার্কুলেশন বেশি হয়েছে, হার্টবিট বেশি হয়েছে, এই জন্য ব্রিদিং রেটটাও বেড়ে গেছে। তারপর যখন সে রেস্ট পজিশনে চলে আসলো, তখন এই যে পালস রেট আর ব্রিদিং রেট এটা কমে কোথায় চলে গেল 75। বুঝতে পেরেছো? all of you can understand what is breathing rate? Breathing rate is the pulse rate per minute which we can count. হ্যাঁ, আমরা ঘড়ি দেখে ওইটাকে কাউন্ট করতে পারি। अच्छा इधर एक छोटा सा चीज देखो, सुंदर। On an average, the adult human beings rest breathe 15 to 18 times in a minute. During heavy exercise, the breathing rate can increase up to 25 times per minute. While we exercise, not only we do breathe first, we also take deep breath and thus inhale more oxygen. যখন আমরা বেশি বেশি কাজ করি তখন আমরা অনেক পরিমাণ অক্সিজেন আমাদের ভিতরে নিতে থাকি। যখন আমরা বেশি বেশি কাজ করি তখন আমরা অনেক পরিমাণ অক্সিজেন আমরা ভিতরে নিতে থাকি। আচ্ছা, আমরা ব্রিদিং তো পড়েছিলাম, ব্রিদিং এ আমরা নেজাল ক্যাভিটি, লাংস, চেস্ট ক্যাভিটি, ডায়াফ্রাম সম্বন্ধে আমরা পড়েছিলাম। তো এই জিনিসটা আমাদের এখন দরকার নেই। এখন দেখো, এখন এখানে একটা ছবি আছে, ছবিটার দ্বারা আমাকে দেখানো হচ্ছে যে ये जो औरत है जो काम कर रहा है उसका ब्रीदिंग रेट 1 होगा, ये जो इंसान सो रहा है उसका ब्रीदिंग रेट 1 होगा, ये जो इंसान चल रहा है उसका ब्रीदिंग रेट 1 होगा, ये जो इंसान दौड़ रहा है उसका ब्रीदिंग रेट 1 होगा, और ये जो इंसान पढ़ रहा है उसका ब्रीदिंग रेट अलग होगा, और ये जो आदमी काम कर रहा है उसका ब्रीदिंग रेट अलग होगा। क्यों? डिफरेंट पर्सन्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क according to their different conditions, their breathing rate will also change according to their activities. Understand? এই সব মানুষেরা যে যে কাজ করছে সেই কার্য অনুযায়ী তাদের ব্রিদিং রেট কি হবে, চেঞ্জ হবে। যে হালকা কাজ করছে তার জন্য ব্রিদিং রেট কম হবে, যে ভারী কাজ করছে, পরিশ্রমের কাজ করছে, তার জন্য ব্রিদিং রেটটা বেশি হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, এখন আমরা নেক্সট যাই। अच्छा ये एक बहुत एक सुंदर सा एक्सपेरिमेंट है, यू कैन सी। এখানে একটা সুন্দর এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে দিয়েছে। হিয়ার a good experiment is given, all of you can see here a good experiment is given regarding inhalation and exhalation, regarding inhalation and exhalation। अच्छा बोलो तो, अच्छा बोलो तो কোনটা ইনহেলেশন কোনটা এক্সহেলেশন? अच्छा ইনহেলেশন কোনটা, 1 না 2 বলো? कैन एनीवन आंसर व्हिच वन इज इनहेलेशन? सांस जब हम अंदर ले जाते हैं तब 1 होगा या 2 होगा? ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा आप 1। हाँ 1 होगा। इनहेलेशन इज 1 एंड एक्सहेलेशन इज 2। हाउ? देखो, ये एक सुंदर सा एक्सपेरिमेंट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने क्या किया, हमने वी हैव टेकन 2 प्लास्टिक बॉटल्स, हमने 2 प्लास्टिक के बॉटल को हमने ले लिया, আমরা দুইটা প্লাস্টিকের বোতলকে নিয়েছি। তারপরে কি হয়েছে, আমরা এখানে দুইটা বেলুনকে অ্যাডজাস্ট করেছি। বেলুন, বাজার में तो বেলুন मिलता है, আমরা কি করেছি, দুইটা বেলুনকে সেখানে অ্যাডজাস্ট করেছি। কিভাবে অ্যাডজাস্ট করেছি? কোনো একটা পাইপের দ্বারা, সাপোজ ইটস আর পাইপ, হ্যাঁ পাইপের দ্বারা আমরা বেলুনগুলোকে, আরে ফোঁটা পড়ে না কেন, বেলুনগুলোকে আমরা অ্যাডজাস্ট করেছি। We have adjusted 2 balloons
विद द हेल्प ऑफ ए पाइप। ठीक है, हमने दो बैलून को एडजस्ट किया विद द हेल्प ऑफ ए पाइप। अभी क्या होगा, अभी हम इसमें क्या देंगे, एयर देंगे। क्या देंगे, व्हाट विल पोर इनसाइड, हम इसमें एयर देंगे। देखो हम जब इनहेल करते हैं ना, हम लोग एयर को इनहेल करते हैं, हम पर्टिकुलरली ऑक्सीजन को इनहेल नहीं करते। हमारे लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को सेपरेट करके ले लेता है, छान के ऑक्सीजन को ले लेता है। When we inhale, we generally take air, we don't take oxygen. So our lungs, what they do, they separate the oxygen, they separate the oxygen from different constituents of air. ठीक है, तो क्या हुआ, पहले ये जो एयर हमने ऐसे इनहेल करो, सांस ले लिया हमने, तब क्या हुआ, ये फूल गया, ये जो डायफ्राम है ये बाहर ऐसे आ गए, तब होता है इनहेलेशन। अभी जब हम सांस को छोड़ देंगे, अभी जब हमको सांस को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो जो डायफ्राम है, ये जो रबर शीट है, ये डायफ्राम के जैसा है। ये जब बैलून जो ऐसे पिच को हो जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे हो जाएंगे, तो डायफ्राम ऐसे ऊपर में चला जाएगा। तो ये होता है एक्सहेलेशन। तो इस एक्सपेरिमेंट को द्वारा हमने देखा कि हम लोग कैसे इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन के द्वारा हमारे इधर एक फ्रेम है, पता है, हमारे दो लंग्स, ये दो लंग्स है, लंग्स के नीचे ना एक ठाचा है, ठाचा, वो ठाचा जब हम सांस लेते हैं तो नीचे नाम जाता है, जब हम सांस छोड़ते हैं तब ऊपर उठ जाता है। यही एक्सपेरिमेंट इसमें दिखाया गया है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, एक सुंदर सा बात इधर लिखा है, ब्रीथ फॉर बेटर लाइफ। सांस लो, क्यों लो, फॉर बेटर लाइफ, सांस लेना चाहिए। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। तो रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम कैन इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू टेक इन मोर एयर। अगर आप कभी भी हॉस्पिटल में, कभी भी आपके फैमिली का कोई हो, आपका दोस्त कोई हो, आपके रिलेटिव कोई हो, और कोई भी जान पहचान वाला अगर कभी भी कोई भी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, एडमिट होने के साथ साथ पहला चीज जो है, जो डॉक्टर लोग या नर्स लोग चेक करते हैं, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इनटेक और ऑक्सीजन का बैलेंस आपके बॉडी में ठीक है कि नहीं, आपके सेल और आपके लंग्स सही तरीके से ऑक्सीजन ले सकता है कि नहीं, ये चेक करता है। उसको बोला जाता है ऑक्सीमीटर। ये छोटा सा मशीन है, हाथ में लगाया जाता है टू मेजर द ऑक्सीजन काउंट ऑफ द बॉडी। तो आप अगर प्राणायाम करेंगे, इफ यू परफॉर्म योगा, देन देयर विल बी ए राइजिंग कैपेसिटी ऑफ द लंग्स टू इनटेक मोर एयर। हम लोग जब प्राणायाम करते हैं, व्हेन वी परफॉर्म प्राणायाम, व्हेन वी परफॉर्म एक्सरसाइज, देन आवर लंग्स gather the capability to inhale more and more oxygen from the air, or the lungs regain the capacity of accepting oxygen more and more than in regular way। जब आप रेगुलर वे में जब आप इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे, तब तो आपका लंग्स ऑक्सीजन लेगा, लेकिन जब आप प्राणायाम करेंगे तब क्या होगा, आपके जो लंग्स है वो ज्यादा ऑक्सीजन लेना शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी देखो, अभी इधर क्या है, अच्छा अरे अच्छा, तो इधर एक इक्वेशन दिया गया है रिगार्डिंग द रेस्पिरेशन। व्हाट इज द इक्वेशन, इट इज गिवन हियर। The equation is given that glucose in absence of oxygen, जब in absence of oxygen होगा तो क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक, बताओ क्या होगा, बताओ। जब ग्लूकोज हम लोगों को एनर्जी देगा, ग्लूकोज मतलब शुगर, ये है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब एनर्जी देगा इन एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, तो इसको क्या बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक, बताओ।
जल्दी जल्दी बताओ, कैन एनीवन आंसर? इफ द रेस्पिरेशन ऑकर्स और द ग्लूकोज इज गिविंग एनर्जी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब उसको कौन सा रेस्पिरेशन बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक? बोलो, जल्दी जल्दी आंसर करो। एनारोबिक। हाँ, गुड, एनारोबिक। जब हम लोग ऑक्सीजन के अलावा हम लोग रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे तो वो होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। अच्छा, एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? जब हम लोग दौड़ते हैं तब ये जो जॉइंट्स है ना, ये जो जॉइंट्स है, इस जॉइंट्स में लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। अच्छी तरीके से समझ लो, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड वन टाइप ऑफ एसिड which we can relate with calcium, okay? तो लैक्टिक, अगर किसी को घुटने में दर्द हो, हाथ के जॉइंट में दर्द हो, ये शोल्डर्स में दर्द हो, तो उसको डॉक्टर लैक्टिक एसिड सप्लीमेंट देता है, ठीक है? तो लैक्टिक एसिड इज समहाउ कनेक्टेड विद कैल्शियम। So when we will perform running or we will perform such great exercise which are too much क्या बोलते हैं, बहुत which will feel too much tired of doing such exercise, then our body automatically performs anaerobic respiration. जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तब दो चीज बनता है, वन इज लैक्टिक एसिड एंड अनदर वन इज एनर्जी। दो चीज बनता है, एक होता है लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन आप लोग पढ़ोगे, हायर क्लासेस में पढ़ोगे, क्लास 9 क्लास 10 में 11 में आप लोग पढ़ोगे। तो वन होता है लैक्टिक एसिड, वो बनाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा होता है एनर्जी, वो भी बनाएगा। कौन बनाएगा? हमारा बॉडी, विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? अच्छा, उठ जा, उठ जा। देखो जो लिखा है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज सम मसल्स में रेस्पायर एनारोबिकली, स्पेशली जॉइंट्स के जो मसल होते हैं वो लोग परफॉर्म करते हैं। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है, पल्स पर मिनट भी पढ़ा है। अच्छा, अभी ये देखो, ये है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ये ना फोटो थोड़ा कर्व उठा है, इसलिए आप लोग सिर्फ इस मॉडल पर ध्यान दो। इस मॉडल पर ध्यान दो। इधर है हार्ट, इट इज नोन एज द ब्लड सर्कुलेशन, सॉरी ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन क्या है? पहले लंग्स में रहेगा, लंग्स से हार्ट में आएगा, हार्ट से कैपिलरीज में जाएगा, उसके बाद हार्ट में जाएगा, उसके बाद फिर लंग्स में जाएगा। हम ये ड्रॉ करके देते हैं, ठीक है? रुको, अच्छा रुको, वेट, लेट मी ड्रॉ। Chúng nó bắt đầu nắng nhé. Hey, কথা না, don't talk। देखो मेरा ड्राइंग तो इतना अच्छा नहीं है, तब भी समझ लो। अच्छा,
अच्छी तरीके से समझ लो, द प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन पढ़ लो, क्योंकि हम अगले जो क्लास है उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबको दिखाई तो दे रहा है ना, ऑल ऑफ यू कैन सी। मुझे ऐसे क्लास कराने में अच्छा लगता है, वो जो बोर्ड के सिवाय ऐसे अच्छा लगता है मुझे, तब वो तो ले आना पड़ता है ना। तो देखो, ये है हमारा लंग्स और ये है हमारा हार्ट। हमारे शरीर में कितने लंग्स होते हैं, एक या दो? बताओ कितने होते हैं, एक या दो? बोलो, कैन एनीवन आंसर? हमारे शरीर में कितने लंग्स होते हैं? हाउ मेनी लंग्स आर देयर? 2, यस, 2 लंग्स आर देयर। अच्छा, हमारे इन आवर बॉडी देयर आर 2 लंग्स, वन इज राइट एंड वन इज लेफ्ट। व्हिच वन इज बिग और व्हिच वन इज लार्जर, द राइट वन और द लेफ्ट वन? बोलो, जवाब दो। हमारे शरीर के अंदर 2 लंग्स है, वन है राइट वन है लेफ्ट। एक थोड़ा साइज में ज्यादा बड़ा है, कौन सा वाला बड़ा है? लेफ्ट का वाला बड़ा है या राइट का वाला बड़ा है? बताओ, कैन एनीवन आंसर? राइट राइट। हाँ हाँ राइट, हो गया हो गया, हाँ राइट, ओके ओके ओके, राइट का वाला, चुप, राइट का वाला थोड़ा बड़ा है। तो अभी क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हम लोग इनहेलेशन करते हैं। तो हमने क्या किया, द फर्स्ट प्रोसेस इज इनहेलेशन। द फर्स्ट प्रोसेस इज इनहेलेशन। हमने क्या किया, इनहेलेशन किया। इनहेलेशन मतलब एयर को अंदर ले लिया। जब हम लोग एयर को अंदर ले लिया तो एयर क्या करेगा, सीधा आ जाएगा लंग्स में। ठीक है, लंग्स में आ गया। अभी लंग्स क्या करेगा, लंग्स बोलेगा ठीक है भैया, आप तो हमारे पास आए, अभी क्या करें? तो आपके पास तो नाइट्रोजन भी है और भी बहुत सारे गैसेस है, वो तो हमें जरूरत नहीं, तो हम क्या करेंगे, आपको हार्ट में दे देंगे। तो लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को लेकर, समझ लो, ऑक्सीजन को लेकर जो ब्लड होता है, ऑक्सीजन को कहां भेजेगा, ऑक्सीजन को सीधा हार्ट में भेज देगा, थ्रो वेन। किसके द्वारा भेजेगा, थ्रो वेन। हमारे शरीर में 2 टाइप्स ऑफ nerves are there which carry oxygenated blood and deoxygenated blood. One is vein and another one is artery. First of all, oxygen will transfer from lungs to the heart. Heart क्या डिटेल्स में बता रहा हूं, इतना डीपली पढ़ने का आप लोगों को जरूरत नहीं। ऑक्सीजन क्या करेगा, लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजन को हार्ट में देगा। हार्ट का कितना चैम्बर है, हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर देयर, कैन एनीवन आंसर? हार्ट में कितना चैम्बर है, कोई बता सकता है? ओके ओके, हार्ट में कितना चैम्बर है, बोलो बोलो जल्दी बोलो। 4 3 नहीं 4, ठीक है। हार्ट में 4 होता है, ठीक है। कीप क्वाइट, बताने दो मुझे। तो क्या करेगा, लंग्स पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन को हार्ट में देगा। अभी हार्ट क्या करेगा, हार्ट में तो चुप कथा ना, कथा बोलबे ना तुमरा। तो हार्ट क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को ब्लड के साथ मिक्सअप करेगा, मिक्सअप करके ये कहा देगा, कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में देगा। दीज आर नोन एज कैपिलरीज, दीज आर नोन एज कैपिलरीज। क्या करेगा, ये जो हार्ट है, हार्ट क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को लेकर ब्लड में ट्रांसफर कर देगा। तब ये ब्लड ऑक्सीजन को लेकर कहाँ आ जाएगा, कैपिलरीज में आ जाएगा। कैपिलरीज में आने के बाद ये जो ऑक्सीजन है ये दूसरे सेल में जाएगा, कहा जाएगा, दूसरे सेल में जाएगा, दूसरे सेल में जाएगा। अभी सेल को तो ऑक्सीजन मिल गया, तो सेल क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाल देगा। अभी सेल के पास तो इतना पावर नहीं है कि
शरीर के बाहर वो क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकल दे। देन व्हाट यू विल डू, द सेल विल गिव द कार्बन डाइऑक्साइड टू द कैपिलरीज, द ब्लड कैपिलरीज थ्रू ब्लड विल अगेन ट्रांसफर द CO2 टू द हार्ट, CO2 मिक्स अप विद ब्लड टू द हार्ट, ऐसे सर्कुलेशन होता है। हार्ट क्या करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड उसके पास आएगा तो हार्ट बोलेगा भैया मुझे तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। हार्ट क्या करेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लंग्स को दे देगा। लंग्स क्या करेगा, वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर निकल देगा, उसको बोलता है एक्सेलेशन। समझ में आया ब्लड सर्कुलेशन क्या है? समझ में आया? सब लोगों को समझ में? अगर समझ में आया तो हाथ उठाओ। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको आंसर देना, ठीक है? अच्छा बोलो तो, व्हाट इज, रुको, लेट मी क्वेश्चन फर्स्ट। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए लिविंग बॉडी? नाम क्या है बोलो? शरीर। हाँ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? आंसर करो, क्या है? कुछ ही देर पहले तो आपने पढ़ा था। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म? बता सकते हो? कैन एनीवन आंसर? हाँ, सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है? अभी आज हम लोगों ने ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा है। नेक्स्ट डे, अगले दिन हम लोग डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ेंगे। ओके, गुड नाइट।